25 years of experience in corporate strategy and startups, from co-founding Iris Retail to guiding companies to IPO. He has been instrumental in scaling businesses and helping startups raise capital across sectors. Everyone, the applauding should not stop. Thank you, sir. As we begin this journey, it's time to recognize the partners who made this platform possible. Our event sponsor, Yes Bank and Yes Securities. Our legal partner, Corp Ninja. Knowledge partner, AKGEC. Our gifting partners, Rarity, Hapilo, Shelby's, Clevo, Hypergrow, APB, Dressfolk, Warco, and Rusty. Let's give them a massive round of applause. And now, to officially open today's event, I'd like to invite Mr. Vineet Sagar, Managing Partner at Venture Garage, an entrepreneur and strategic advisor who's helped scale multiple startups to $100 million plus valuations by enabling fundraising from top global VCs and building one of India's most powerful early stage investor networks to share the vision behind SME Shakti and why this movement matters today more than ever. Can we have a huge round of applause? Thank you. Just give me a second to settle down, please. So, good evening, ladies and gentlemen. Over the last few weeks and during the course of planning SME Shakti, the team at Venture Garage had the opportunity to interact with SME promoter destination on earth. With that, I would request that you all hold on to your seats tightly and not only hear our speakers talk, but also participate with your inputs and questions. Thank you. The applauding should not stop. Thank you. To all the SMEs also to adopt for the technology, but what happened, there are a lot of the systems that they have implemented in different areas, like generating for the revenues, tracking for the revenue, or tracking for your supplies. But the problem comes in now we have a multiple source of the information, and it is becoming difficult to you to consolidate and look at the information at a single source so that the decisions can be very quick. So that's why we are trying to understand and giving suggestions how you can connect your different dots or different applications. Those are generating the data for you, processing the data for you. So this is what we understand. SMEs would be struggling. You also try to link it. Are you in
in the same journey that you are facing these challenges, like the compliances. This is one of the very biggest challenge that SME face today. It's very becoming difficult because when the data is not available, compliances are not happening on time. So there should be an application actually which can pick up the data from multiple sources, compile it, validate it, and push it to your returns, push it to your compliance portal. That is very highly missing in SMEs and MSMEs. And this is where I think you should put in your efforts to analyze and understand what all the applications are available. The less operational visibility, that is the second challenge that the people face it. Where is my sales order? How and when it will get prepared and dispatched to the customer? What are my receivables? How much delay is happening and who is actually delaying most on that part? Please be on the same presentation. Who is operating? First one, last one. Missing workflows. That is also one of the challenges, because what happened today, the most of the owners or leaders, they are traveling. So they want things to be happening on the mobile. Okay, so becoming difficult when suppose you get a sales order, your salesperson pushing to get that approved because the customer is asking for the discounts, but you don't have the data available with you. What was the minimum price what I have sold already? What was the quantity I was sold, and what should the price we should go about, so that we don't go beyond our threshold the price. But without having this data, the decisions becomes wrong, or you take time to decide on those things. Single window solution for MSMEs across finance, tax, legal and advisory services, as he simplifies the legal and accounting compliances for growing SMEs. Welcome, sir. So, good evening everyone. सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाए अपने लिए, जो आप सब लोगों ने इतने बड़े बड़े बिजनेस बनाए हैं अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए। तो सेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव होने वाला है, ठीक है। तो हाउ इज़ द जोश हो गया पुराना। अब किस किस को यहाँ पे धंधा बढ़ाना है या वही चलाना है, या ये बोलूँ कि किस किस को धंधा नहीं बढ़ाना है। कोई है सर यहाँ पे जिसको धंधा नहीं बढ़ाना है? सभी को बढ़ाना है। तो हमारी 31 मार्च की बैलेंस शीट बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को इंडिया में। किस किस की, ज़्यादातर लोगों ने, हम सब ने जीरो से बिजनेस स्टार्ट किया है। एक लेवल तक तो ले आए, पर उससे आगे कैसे लेके जाएं। अगली पीढ़ी ज्वाइन नहीं करना चाहती बिजनेस को। क्यों? कहते हैं लाला बिजनेस है, दुकान है, तो हमें तो ज्वाइन नहीं करना। वो अल्टीमेटली जॉब में चले जाते हैं। जब मैं पढ़ता था तो एक कहानी सुनाई गई थी मुझे, टाटा कैसे बना। एक कार बनाई गई, उस पर कुछ काम हुआ, अगली नई पीढ़ी आई, उसने फिर से स्क्रैच से स्टार्ट कर दिया उस कार पे, फिर अगली पीढ़ी आई, उसने स्क्रैच से स्टार्ट कर दिया। तो क्या वो कार कभी बन पाती? नहीं। तो जितनी भी डेवलपमेंट हुई, पुरानी पीढ़ी ने उसको आगे लेके गए, तभी एक टाटा बना, तभी एक रिलायंस बना, तभी एक आदित्य बिरला बना। पर सिंस अगली पीढ़ी ट्रेडिशनल बिजनेस बोल के इसको छोड़ देती है, ठीक है, उसके रीजंस पे भी आएंगे। तो जब तक वो अगली पीढ़ी बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, तब तक वो बिजनेस बड़ा कैसे बनेगा। तो बड़ा तो बनना है, लेकिन बड़ा कैसे बनना है, उसके लिए सिस्टम लाने पड़ेंगे ताकि मंथली प्रॉफिटेबिलिटी पता चले हमारी बिजनेस में, ठीक है। उसके लिए हमें कागजों पे काम करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी बड़ी बिजनेस ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे कोई HR पॉलिसी नहीं होती, जो मालिक ने बोल दिया वही डिसीजन हो जाता है। बहुत सारे ऐसी कंपनी भी देखी हैं जहाँ पे 100 एम्प्लॉई हैं, पर कोई पेरोल सॉफ्टवेयर नहीं है, अकाउंटेंट बैठ के मैनुअली पे स्लिप बनाता रहता है। अब वो कॉस्ट सेविंग है या कॉस्ट लग रही है? अल्टीमेटली अगर हम किसी सॉफ्टवेयर पे थोड़ा सा पैसा खर्च कर देते तो अकाउंटेंट का जो टाइम बचता, उसको हम कहीं इफेक्टिवली अच्छी जगह यूज कर पाते। तो बड़ा बनने के लिए तो हमें सिस्टम लाने ही पड़ेंगे। जब सिस्टम आएंगे तो अपने आप ऑटोमेशन भी आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टेक लेके आएंगे और सब सिस्टम ठीक हो जाएंगे। क्या ऐसा है कि टेक लेके आ गए और सब सिस्टम ठीक हो गए? नहीं। तो सबसे पहले प्रोसेस आएंगे तो टेक एक इनेबलर है जो कि उन सिस्टमों को और स्ट्रॉन्ग करेगा, उसमें गैप्स को खत्म करेगा। अब जब हम SME IPOs की बात करते हैं या फंड रेजिंग की बात करते हैं, तो सब
लाला लोग हैं, हम भी लाला लोग हैं, या बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बोल लीजिए, सबके मन में सवाल आते हैं, यार वैल्यूएशन 50 करोड़ की दे रहा है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो 100 करोड़ की होनी चाहिए, ठीक है। अब इंडिया में जो बिजनेस मॉडल चलते हैं जनरली, ठीक है, सिंस मैं एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी हूं, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि यार एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बना दीजिए। अब वैल्यूएशन में बहुत सारे मॉडल चलते हैं, जिसमें से डिस्काउंटेड कैश फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लो भी बोलते हैं, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर मॉडल है। अब जब बात की जाती है कि चलो यार डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल में बना तो देते हैं, तो बात करते हैं प्रोजेक्शंस की, कि आपके बिजनेस के नंबर्स कितने हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि चलो कम से कम आप 5 साल के नहीं दे सकते, 3 साल के दे दीजिए। जब वो लेने की बारी आती है तो लोग बोलते हैं यार अपने आप डाल दो। जब हमने बिजनेस प्रोजेक्शन ही नहीं कर पा रहे कि हमारा बिजनेस 100 करोड़ से 200 करोड़ में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, तो उस वैल्यूएशन के मायने भी कुछ नहीं रह जाते। ना तो हम ये डिफाइन कर पा रहे कि हमारी सक्सेस स्टोरी क्या है, हम बिजनेस को 100 करोड़ से 150 करोड़ पे ले जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे, 300 करोड़ पे ले जा पाएंगे नहीं ले जा पाएंगे। तो इसलिए सवालों का आंसर खुद आपके अपने पास है। अपने नंबर्स भी बनाइए, आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग करिए 1 साल की, 3 साल की, 5 साल की। इससे ज़्यादा प्लानिंग तो कोई कर नहीं पाता, क्योंकि बिजनेस बहुत डायनेमिक है। अपने नंबर्स देखिए, टॉप लाइन क्या अचीव कर सकते हैं, और रियलिस्टिक प्लानिंग करिए। बहुत सारे बिजनेस ओनर क्या करते हैं कि यार आज 5 करोड़ का है, हम सीधा 500 करोड़ का कर देंगे, चाहे मार्केट का साइज है या नहीं है। अपने कंपटीटर्स को देखिए, उन्होंने कैसे ग्रो किया। कंपटीटर्स भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। इसके बाद जब आईपीओ की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का डिस्कशन हो रहा होता है, बहुत सारे मर्चेंट बैंकर से भी, इन्वेस्टमेंट बैंकर से भी। तो कहते हैं यार कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे ओवर चार्ज कर रहे हैं, हमें सक्सेस दिलवा पाएंगे भी नहीं दिलवा पाएंगे। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, आप जिससे भी डिस्कशन करें उससे पूरी कंप्लीट लिस्ट लें कि मेरा बिगिनिंग से लेके एंडिंग तक क्या क्या खर्चा आएगा किस किस हेड में। इसके बाद जब साइन हो गया एग्रीमेंट, मेरा आईपीओ नहीं आ रहा या मेरा डीआरएचपी फाइल नहीं हो पा रहा, Thank you, sir. Before we move on to the third session, I would like to invite Mr. Praveen Singh from UPCon to share his insights on how to grow SMEs. The industry. So this is the quantum jump what I have done in last 10 years of this organization, and just helping MSMEs to grow, to start this business. And Kanpur was being the hub of industry in UP. So we all started in 1974. It's now 51 years of journey. लगातार प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे और देश में जो है व्यापार को लेकर एक नई क्रांति लेकर आएंगे। और इसी कड़ी में आज एक आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है मोहित जैन जी, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इनसे बिज़नेस को लेकर तमाम बातें करेंगे कि क्या बिज़नेस को लेकर अभी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, क्या आने वाला समय बिज़नेस को लेकर क्या कुछ होने वाला है। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहित जी हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, तो आप ये बताइए कि आप पहले तो अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और क्वालिफिकेशन से मैं एक CA, CS, CMA और एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी हूँ। आज जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, ये आखिर मतलब क्या प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य क्या है? ये प्रोग्राम SME IPO के ऊपर है और SMEs कैसे अपने IPO को लेके आए हैं, क्या क्या उनको प्रॉब्लम फेस होती हैं, तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो भी इनको चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में एक ज्ञान वृद्धि के लिए प्रोग्राम आयोजन किया गया है। अच्छा, ये वेंचर गैरेज करके है, ये आखिर क्या है? वेंचर गैराज एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है जो कि स्टार्टअप्स को और SMEs को फंड इकट्ठा करने में सहायता करती है। तो इसका मोटिव क्या है, अगर इस प्रोग्राम का पूरा मोटिव देखा जाए या फिर ये जो आयोजन किया गया है इसका अगर मोटिव देखा जाए, कुल मिलाकर मेन मोटिव क्या है? इसका मोटिव है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ाई जाए कि ताकि जितनी भी SMEs हैं जो प्रॉफिटेबल हैं वो अपने आप को कैसे लिस्ट करवा सकती हैं, उनको जो जो समस्याएं आ सकती हैं तो उसके समाधान क्या हैं। इस पूरे प्रोग्राम का यही मोटिव है। कुल मिलाकर अगर इसका मोटिव देखें तो छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग के व्यापारी को लेकर। हाँ जी, इसका बिल्कुल मोटिव यही है कि जो छोटे व्यापारी हैं, मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, वो अपनी पूंजी कैसे जुटा पाएँ, कैसे अपने आप को आत्मनिर्भर कर सकें
ताकि उनको लोन के लिए ना जाना पड़े, कैसे वो अपने आप को BCSME प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करवा पाएँ, इसका उद्देश्य यही है। तो ये मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हेल्प क्या करता है इसे लेकर? जैसे मैंने बताया कि वेंचर गैराज एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है जो कि स्टार्टअप्स और MSME के लिए फंड जुटाने में मदद करता है ताकि उनको ग्रोथ कैपिटल मिल पाए। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया था, थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो आपने बताया था कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो है वो बिजनेस को लेकर प्लान जो है वो पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गया है। क्या इसका मतलब, इसका उद्देश्य क्या है या फिर आखिर ये क्यों हुआ है? इसका बेसिकली कारण यह बोल सकते हैं कि जो पुराने बिज़नेस हैं जिसको हम लाला बिज़नेस भी बोल देते हैं, उसमें प्रोसेस नहीं होते, सिस्टम नहीं होते, या एक दुकान की तरह होता है कि जहाँ पे सुबह दुकान खोल दी गई, शाम को बंद कर दी गई। जबकि जो नए नए बच्चे आ रहे हैं उनको ये होता है कि मुझे एटलीस्ट एक सिस्टम से काम करना है, एक प्रोसेस से काम करना है। तो अगर वो सिस्टम आएंगे, प्रोसेसेस आएंगे तो उनको भी अपनी ग्रोथ आगे दिखाई देगी, तो वो इस बिज़नेस से और जुड़ना चाहेंगे, इस बिज़नेस को और आगे ले जाना चाहेंगे। अभी सुनते हैं कि जिस बिजनेसमैन को देखते हैं या फिर बातें होती है तो वो अक्सर कहते हुए नज़र आते हैं कि बिज़नेस हमारा मंदा चल रहा है, दौर मंदी चल रही है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्यों आखिर ऐसा हुआ है? बिज़नेस ऐसा कुछ नहीं है कि मंदा चल रहा है। बिज़नेस करने के तरीके बदल रहे हैं, नए नए तरीके बिज़नेस आ रहे हैं, मॉडर्न बिज़नेस आ रहे हैं, जो कि ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिज़नेस चेंज हो रहा है, जहाँ पे ट्रेडिंग इतना लुक्रेटिव नहीं रहा है। तो बिज़नेस करने के तरीके बदल रहे हैं, हमें नए नए तरीक़ों से के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ेगा, बिज़नेस करने का तरीका बदलना पड़ेगा, लेकिन बिज़नेस में कोई मंदी नहीं है। जब हम बात करते तो अक्सर हम ये कहते हैं कि हम MSME को जो है वो ऊपर लेके आएँ, क्योंकि भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कि MSME है, जो मध्यम वर्ग के उद्योग है। तो क्या जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो है, या फिर जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो उसके चांसेस क्या बढ़ रहे हैं? वो MSME में क्या अपना कदम रख पाएंगे या फिर उनके लिए अभी भी ये सपना ही है एक? नहीं, आप जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स को देखोगे जो कि आजकल यूनिकॉर्न बना रहे हैं, इंडिकॉर्न बना रहे हैं, वो सब उसमें से ज़्यादातर लोग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ही हैं। जब वो लोग एक इंडिकॉर्न या यूनिकॉर्न बना सकते हैं तो बाकी सब लोग भी क्यों नहीं बना सकते? सब लोग VC से या प्राइवेट इन्वेस्टर से फंड लेके उस बिज़नेस को एक नया बिज़नेस क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ बिज़नेस करने के तरीक़ों में चेंज आया है कि आपके क्या नई चीज़ लेके आ रहे हैं, क्या नया इनोवेशन लेके आ रहे हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, तो आपको उसी दिशा में करना पड़ेगा। आप पुराने तौर तरीक़ों से बिज़नेस को आगे नहीं ले जा सकते। अक्सर कहा जाता है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उसके लिए बिज़नेस एक चैलेंज है, तो क्या, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि रिस्क भी है, लेकिन अगर जिसको बिजनेस से इश्क हो जाए उसके लिए रिस्क नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अभी भी ये रिस्की है। तो क्या लगता है कि मतलब उसको एक नए एंटरप्रेन्योर के लिए कैसा करना चाहिए? मैं ये बोलूँगा कि बहुत सारे लोग आधे दिल से काम कर रहे होते हैं, उनको वो स्टार्टिंग से सोच के बैठे होते हैं कि अगर ये बिज़नेस नहीं चला तो मैं वापस जॉब में चला जाऊँगा, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो साइड में बिज़नेस कर रहे हैं, साइड में जॉब कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए, ना कि ओनली बिज़नेस के लिए, किसी भी चीज़ की सफलता का मंत्र है कि जिस चीज़ को भी करो जुनून से करो। अगर बिज़नेस करना है तो उसको पूरे जुनून से करिए, ऐसा तो उसके चांसेस फेलियर के बहुत कम हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे कि बिज़नेस में हम देखते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग ज़्यादा होने लगा है, खास करके AI टूल्स वगैरह आ गए हैं नए नए, और उससे काफ़ी हेल्प मिल रही है। तो आखिर अब नए बिज़नेस में इन जो मतलब नए नए टूल्स आ रहे हैं उसका क्या योगदान रहेगा बिज़नेस में? देखिए, बिल्कुल नए नए टूल्स का बहुत योगदान है, क्योंकि जब से ChatGPT वगैरह आया है तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे लेटर्स बिज़नेस को भेजने होते हैं, एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने होते हैं, या नोटिस भेजने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिनके लिए पहले बहुत सारे प्रोफेशनल्स चाहिए होते थे। तो फर्स्ट ड्राफ्ट आपको मिल जाता है बहुत सारी चीज़ों का। हाँ, डेफिनेटली AI, क्योंकि AI के डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको रिव्यू जरूर करने पड़ेंगे, आप उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। बट लेकिन जो प्रोसेस का जो टाइमलाइन है, जो या डॉक्यूमेंटेशन क्रिएशन का जो टाइमलाइन है, वो बहुत छोटा हो गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। तो ये हमारे साथ मोहित जैन जी थे, जो कि बिज़नेस एक्सपर्ट के तौर पे राय दिए कि किस तरीके से आज के दौर में बिज़नेस जो है, कहा जा रहा है कि बिज़नेस मंदा हुआ है, लेकिन अभी भी ये दौर बरकरार है, और मध्यम वर्ग के लोग जो है वो रीढ़ की हड्डी यानी कि MSME में अपना योगदान दे रहे हैं, और आने वाला भविष्य बिज़नेस के लिए एक नया दौर लेकर आएगा। महुआ खबर के लिए मैं विवेकानंद झा।